model, that is Modigliani Miller Dividend Irrelevancy Model, right? So argued that dividend policy of a company, what he argued? Dividend policy of a company has no effect on its value of assets, that is valuation of a company. Argued that what? Modigliani and Miller argued that dividend policy of a company has no effect on its value of assets or valuation of a company. Simple. It means market value does not change whether company pay dividend or not. What said? That market value remain constant whether you pay dividend or not, right? That is why here it is given that it means market value does not change. What beta? Market value does not change whether company pay dividend or not. That is why it is known as what? Which model? Dividend irrelevancy model. That is why this model is known as what beta? Dividend irrelevancy. Right? Dividend irrelevancy. देखो नाम से मालूम पड़ता है. Dividend irrelevancy means dividend is irrelevant on the valuation of a company. That's it. It means what? Lower rate of dividend declared. If dividend is irrelevant, it means what? If you declare lower rate of dividend declared, its retained earnings will increase. It's common. If you declare less dividend, ultimately side by side your retained earnings will increase. That is the common thing. That is the common funda, common logic, right? If lower rate of dividend will be there, if you declare lower rate of dividend, then ultimately retained earnings will increase. Retained earnings will increase, which increases net worth also. So see the logic. What is said? क्या बोला है बेटा? Dividend irrelevancy model सीधा बोल दिया कि dividend is irrelevant on the valuation of a company. Simple सा फंडा. इसने directly बोला है कि dividend is irrelevant on the valuation of a company, right है? तो इसने पूरा valuation की बात की, valuation of a company. So क्या बोल रहा है? ये lower rate of dividend declare किया तो retained earnings बढ़ेगा, और retained earnings बढ़ेगा तो net worth बढ़ता है. Net worth का formula पता है ना सबको? Normal 11 से करते आ रहे हो. Share capital plus reserve and surplus. सुना है ना? Capital plus reserve and surplus. That's it. Net worth, right? So lower rate of dividend declared, then what will happen? It's retained earnings will increase. Retained earnings will increase, which increases net worth also. Which increases what? Net worth. Okay. Retained earnings बढ़ेगा तो net worth will also increases, right? So dividend irrelevancy model this model emphasizes that dividend is not relevant for shareholders' wealth. Model emphasizes that what? Dividend is not relevant for shareholders' wealth. याद रखना, model dividend इसको है ना कभी-कभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली देगा कैलकुलेट, राइट है, मार्केट वैल्यू अंडर डिविडेंड इररिलेवेंसी मॉडल. हाँ, डिविडेंड इररिलेवेंसी. तो डिविडेंड इररिलेवेंसी मींस व्हाट? मॉडल ही है. दैट इज मॉडल. तो दोनों नाम याद रखने का. इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडल. कभी डायरेक्ट दे सकता है मॉडल और डिविडेंड इररिलेवेंसी मॉडल, राइट? So this is the basic funda which everyone have to remember. This is the normal theory. This is the normal concept of model. तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, सबके माइंड में फिट होना चाहिए, राइट? तो समझ गया ना? मालूम पड़ गया? तो argued that dividend policy of a company has no effects on its value of assets or valuation of a company. It means what? Market value does not change whether company pay dividend or not. That's it. Finally, it means what? Lower rate of dividend declared, so its retained earnings will high or increase. And if retained earnings will increase, then ultimately net worth also increases. You know that net worth, that is capital plus reserve and surplus, right? So reserves and surplus, retained earnings से reserve and surplus ही बढ़ता है ना बेटा, right? So which increases net worth also. That is why dividend irrelevancy model emphasizes that dividend is not relevant. What? Dividend is not relevant for shareholders' wealth. That's it. अब ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए. एक बार रिव्यू करो, दिमाग में रखो. अभी मैं पूछूंगा.
assumptions. Now we are studying what? Assumptions of Modigliani and Miller. What? Assumptions of what? Modigliani, Miller dividend irrelevancy model. Modigliani, Miller dividend what beta? Dividend irrelevancy model. Right? So see, first one is what? There is no personal or corporate tax. टैक्स होना ही नहीं चाहिए, पहला इसका थियरी का सबसे बेसिक एजम्पशंस है. देयर इज नो टैक्स. ओके, याद रखना. सेकेंडली क्या बोल रहा है यार? देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज. मतलब जो कॉस्ट जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इशू या फिर जो भी है फ्लोटेशन कॉस्ट स्टार्टिंग का, इनिशियल कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए. सीधा बोल दिया, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज. Right? Then third one is what? Capital investment policy. What? Capital investment policy is independent. What? Capital independent. देखो capital का जो investment policy होगा, that is independent of its dividend policy. Right? अब देखो टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कॉस्ट नहीं होना चाहिए. इशू के टाइम पे जो भी कॉस्ट जा रहा है, ट्रांजेक्शन का कॉस्ट जा रहा है, ब्रोकरेज जा रहा है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. क्योंकि नॉर्मली बेसिक पर्पस क्या है? रिटेन अर्निंग्स है. रिटेन अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंसिंग करना. बिकॉज अगर आप डिविडेंड को इररिलेवेंट मान रहे हो, डिविडेंड दो या मत दो, मार्केट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, राइट? तो फंडा क्या हो गया? रिटेन अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो. रिटेन अर्निंग्स इंक्रीजेस नेटवर्थ, और रिटेन अर्निंग्स होगा तो मार्केट से आपको नया इशू करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी. तो आपके जो अदर कॉस्ट है वो भी बचेंगे, क्योंकि आप अपना ही फंड ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे. रिटेन अर्निंग्स, सेल्फ फाइनेंसिंग. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट. क्या बोल रहा है नेक्स्ट? और याद रखना ये सब एजम्पशन फिक्स है इसके, और ये एजम्पशंस एग्जाम में आएंगे तो सेम जितना है उतना दिखाना पड़ेगा. लेकिन फर्स्ट ये दिखाना, पहला आपको ये दिखाना पड़ेगा. एमएम मॉडल का कुछ भी आया शॉर्ट नोट्स या 7-8 मार्क्स में, फर्स्ट राइट डाउन दिस एंड आफ्टर दैट एजम्पशन. दिस वन एजम्पशंस. ठीक है, मालूम पड़ा? और थोड़ा 8 मार्क्स में रहेगा तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो. राइट है? सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी. मींस कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी. दोनों अलग रहेगा. बराबर है? इंडिपेंडेंट है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज व्हाट? इंडिपेंडेंट. ठीक है, सिंपल सा फंडा है. There is a perfect capital market exists with free flow of information. Perfect capital market होगा क्या बेटा? Perfect capital market exists with free flow of information. Means information तो कॉमन सी बात है ना भाई. information नहीं रहेगा तो मतलब क्या है? और perfect capital market क्या? Perfect capital market. Dividend policy has no effect on cost of equity. और जो भी आप dividend policy ले रहे हो, जो भी आपने डिविडेंड पॉलिसी बनाया है या जो भी आपका डिविडेंड पॉलिसी है, हैज नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. उस डिविडेंड पॉलिसी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इक्विटी को जो दे रहे हो आप कॉस्ट में, बराबर है, मालूम पड़ा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. सो डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब पता है ना? अभी शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर आपके इन्वेस्टर्स ही है एक तरह से. पहले इन्वेस्टर ही है तभी तो कंपनी के ओनर है. दे आर इन्वेस्टर, दैट इज व्हाई दे आर ओनर, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, तो उतने पार्ट के वो शेयर होल्डर हो गए. तो उनको भी तो कुछ रिटर्न चाहिए, तो कंपनी जो देगी, कंपनी जो उनको एक्सपेक्टेड रिटर्न सोच रही है कि भाई इतना मिलेगा, तो दैट इज व्हाट कॉस्ट. क्योंकि उनको डिविडेंड मिलने में तो टाइम लगता है ना, कम से कम 1 ईयर तो वेट करना पड़ेगा ना बेटा. तो इसलिए 1 ईयर वेट करना पड़ेगा, तो हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोलते हैं उसको. समझे कि नहीं? So dividend policy has, इधर सीधा बोल दिया, dividend policy has no effect on cost of equity. और ये सब याद रखने का. ये सब क्या है? ये सब है ना बेटा, आपको ट्रू फॉल्स में दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया रहेगा. अभी दे सकता है, देखो, there is an assumption of perfect capital market in MM model, true or false, या फिर अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया रहेगा. These are the assumptions. Tick mark the correct assumptions या चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम दी अबव. तो बेटा परफेक्ट कैपिटल मार्केट है एक assumptions है. यस, परफेक्ट कैपिटल मार्केट इज एन assumption. परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, एग्जिस्ट विद फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर. जो भी इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दैट इज इंडिपेंडेंट है.
कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, नो टैक्स, डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बराबर है। तो ये सब बेसिक एजम्पशंस याद रखेगा, ये सब एजम्पशंस अगर फॉलो करेगा तो ही इसका थियरी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। So dividend policy has no effect on cost of equity and investors lend or borrow at the same rate of interest. मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज नहीं होगा, बराबर है, वो भी सेम रहेगा, मतलब सब कांस्टेंट होना चाहिए। क्या? ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो सीधा बोल रहा है इन्वेस्टर लेंड और बोरो एट व्हाट बेटा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज द फंडा, दैट इज द फंडा, बराबर है। तो ये सब assumptions है बेटा, ये याद रखेगा कि there is no tax, no flotation cost, no transaction cost, no brokerage, capital investment policy is independent. What? Capital investment policy is independent of its dividend policy. तो capital investment policy है वो independent होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो पता ही है ना बेटा, जो भी कैपिटल है अब इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको, क्या पॉलिसी है आपकी, राइट है। तो वो उसका डिविडेंड पॉलिसी से बराबर है, उसको एकदम अलग रखना है आपने, राइट। तो दैट इज व्हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी। परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, परफेक्ट, परफेक्ट सुना है ना, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, आ सकते हो, जा सकते हो, इजीली मिलेगा सब कुछ, राइट है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, राइट, विद फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, dividend policy has no effect on cost of equity, investor lend or borrow at the same rate of interest. So these all are the assumptions which must be there. अगर इसमें से assumptions कोई भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा या दो नहीं है, कुछ नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता ना, उसका assumption fulfill ही नहीं होगा। तो उसने जो assumptions दिए है वो सब assumption follow होने चाहिए, तो ही उसका theory applicable है, अदरवाइज नहीं है। जो एमएम ने assumptions दिए वो assumptions आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका थियरी एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर है। क्लियर? assumption सबको याद रहेगा। और ये assumption है ना, इसका आता है शॉर्ट नोट्स में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो ये assumption सबको याद रखना है। ये assumption लिखने से पहले मीनिंग लिख लेने का, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द assumption। तो चलो अभी assumption फटाफट। सो Modigliani Miller dividend irrelevancy model formula, it's very common, that is P0, that is prevailing market price of a share, is equal to P1. P1 means market price of a share at the end of period 1 plus D1, that is dividend to be received at the end of period 1, divided by 1 plus K. 1 plus K. K means cost of capital, that is cost of equity capital, right? So this formula everyone have to remember it, याद रख लो। अभी मेरे साथी P0 is equal to क्या, फटाफट ताकि एग्जाम में फटाफट प्रैक्टिकल आप करके हटा दो, ठीक है। P0 is equal to what, P1 plus D1 divided by 1 plus cost of equity, that's it, ठीक है, या cost of capital। क्या P0 is equal to, फटाफट बोलो फास्ट, सामने सामने अपने सामने बोलो, P0 is equal to what, P1 plus D1 divided by 1 plus K, that's it, क्लियर। चलो नेक्स्ट। हाँ अब इसमें देखो एक और मेन चीज है, सबसे मेन, Modigliani Miller dividend irrelevancy model का क्या बेटा, Modigliani Miller dividend irrelevancy model, well done बेटा, well done, I can see the answers of formula, very good बेटा, Neeraj and Yash, right। तो formula to calculate number of shares to be issued to implement the new project। अब क्या बोलता है Modigliani Miller में, देखो कितना नंबर ऑफ आपको शेयर इशू करना है टू इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट का कुछ प्लान है तो एज पर दिस मॉडल हाउ मेनी शेयर्स यू हैव टू इशू, व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स यू विल गोइंग टू इशू। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा, ये दिख रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहा है, चेंज इन द नंबर, ये डेल्टा आ गया मतलब ट्रायंगल आ गया, मतलब क्या, चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू इंप्लीमेंट द न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए कितना आपको नया इशू करना पड़ेगा, बस इतना याद रखो, उतना समझो मत, उतना डिटेल मत जाओ, ठीक है। याद रखो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करना है फॉर इंप्लीमेंटिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट। तो आ जाओ, कितना इशू करना पड़ेगा, तो इशू करोगे तो नॉर्मल सी बात है, चेंज होगा ना, पहले जितना शेयर्स है प्लस ये नया आएगा तो चेंज होना ही है बेटा। सो आई क्या बेटा,
आई। चेंज होता है कि नहीं, याद है ना? अरे भाई आप बायबैक करते हो, बायबैक में आपका 50,000 शेयर्स है, अब उसमें से 10,000 आपने समझो कि 25% बायबैक कर लिया, जो भी है, मालूम पड़ा, जो भी जितना भी बायबैक कर लिया, तो जब नया बैलेंस शीट बनाएगा तो उतना माइनस हो जाता है ना बेटा शेयर्स। नए बैलेंस शीट में फिर 50,000 थोड़ी लिखता है, जो भी है नया इशू करेगा तो वो प्लस हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो देखो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या बेटा, आई। क्या? आई मींस टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, माइनस ई, ई मींस अर्निंग कितना है कंपनी का, माइनस एन, एन मींस नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एन इंटू D1, D1 मींस डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ पीरियड 1 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1। सो कॉमन फॉर्मूला याद रखो, सबको पहले अपना अटेंडेंस डाल दो, कम ऑन। So therefore, remember it everyone, for implementing new project, what amount of number, what number of shares you have to issue, for that formula is what, I, total investment कितना required है, minus E, earnings, minus N, N means number of shares outstanding कितना था at the beginning, फिर multiplied by dividend, डिविडेंड कितना मिल रहा है उनको एट द एंड ऑफ पीरियड 1, डिविडेंड के लिए तो 1 ईयर रुकना ही पड़ता है ना, वेट करना ही पड़ता है, राइट है। सो एन इंटू D1, ये बीच में इंटू है, इंटू, ठीक है, एन इंटू D1 बराबर है, जिसको नहीं समझेगा वो इंटू का साइन डाल देना, इतना तो कॉमन है ना, दोनों अलग अलग है तो इंटू का ही साइन रहेगा, डिवाइड बाय P1, P1 मींस मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड 1, दैट्स इट, बराबर है। तो ये सब फॉर्मूले पढ़ के रखना, इसके और पीछे जो है नॉर्मल अपना फॉर्मूला उसका P1 का, P0 P1 बराबर है क्या बेटा, P0 फिर P0 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस